All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. Of course, the one constant feedback that we've been getting is improve your audio, improve your video. Yes, we do have that intention, is all I like to say. But just that, we're waiting for the right time. Now, what is the right time? Of course, once we start earning a little bit, from our YouTube and from our Instagram and, of course, other sources that we are on, the first thing, and we promise you that the first thing that we're going to do is invest in a camera, invest in a mic, etc., etc. But till then, of course, all we would like is for you guys to bear with us for a little bit. We try and of course bring you these insights and all these stories after a lot of research, guys. But this is something that we genuinely wanted to do, and hence we are on these platforms. Otherwise, actually monetization and money is, of course, that's something that is secondary. But we work a lot on our post production also while we are speaking, and of course, we take a lot of time in editing these videos, and of course the audio that we bring you. But a little bit of time is required, guys. Is what we are asking for. But yes, of course, if you'd like to support us, there's membership that is open on YouTube. You can pay as you like and support us, and of course, we'll try and see what is the best investment that we can make, and the best resources that we can get in order to bring you these episodes. But of course, without any further ado, let's start off. Dwanil, what's happening, man? I mean, Sri Lanka doesn't really look like a team that was set for India, or maybe India too good. What's happening with Sri Lankan batting with Jayasuriya as a coach? श्रीलंकन बैटिंग छोड़ो, मैंने एक चीज सबसे पहले बोली थी लास्ट एपिसोड में या उससे पहले वाले एपिसोड में कि Hmm. ग्रेग चैपल ने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया था एंड नोबडी Hmm. लाइक्ड इट एंड विल गौतम गंभीर चेंज द बैटिंग ऑर्डर. Yes. Does he look like one? Yes. So Sri Lanka's batting order, very happy with Pattam Nissanka, very happy with the top three. Hmm. After that they मिसफायर कर गए यार, वो लोग बहुत Hmm. ज्यादा मिसफायर कर गए. वो इसने बोला था जयसूर्या ने, वी नीड टू लर्न हाउ टू टेक द गेम डीप. अगर आप मिडिल ऑर्डर में आते हो तो ये नहीं है कि आप ये लोग अगर 12 की रन रेट से खेल रहे हैं तो आपको भी 12 की रन रेट से खेलना है. आपको गेम को डीप लेके जाना है तो 12 का 14-16 भी हो सकता है, लेकिन फिर आप डेथ ओवर्स का इस्तेमाल करते हो. वन मोर स्मार्ट थिंग दैट इंडिया रियलाइज्ड when they were batting first is that it is very difficult to hit when the ball gets very old. When Hmm. the ball gets Hmm. very old, it starts gripping, it starts to slow down, and which is exactly what Surya Kumar Yadav had realized. So you could see a lot of them not panicking, a lot of them still being able to, sort of ball in the right areas. And I think even, a lot of teams make strategies. They do a player versus player matchup, but then suddenly there's Riyan Parag, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं. आपको पता ही नहीं कि ये बॉलिंग भी करता है. So Yeah. So yeah, I think a classic example of what do you say, inexperience. But yeah, inexperience भी नहीं है, पता है श्रीलंकन टीम में. Hmm. It's just a kind of short selections that they had. No, very, Hmm. and they should have won the first match, to be very honest. But the intent. But that is what India does, right? I mean, they have a knack of now. They developed a knack of coming back into games even after being in situations like a 30 for 30 required of 30, or maybe just a 70 odd now required of what it was 7 overs or something like that. But then Sri Lanka just managed to somehow produce collapses in both the games, and that is something that I'm sure that Jayasuriya would not be proud of. और ये चीज जयसूर्या को देख के ही ना लगती है कि मतलब यार वो इतना गुस्से में है बैठा हुआ वहां पे Yeah. डगआउट में Mm. अपने, कि यार ये क्या हो रहा है, Mm. मतलब इतना अच्छा गेम तुमने सेटअप किया है, टॉप थ्री ने तुम्हारे, कुशाल मेंडिस, पातो निशंका की तूने बात करी. सो ऑफ कोर्स द टॉप थ्री रियली फायर्ड, बट समवेयर चरित सलंका नाउ वो उसको भी लग रहा होगा कि यार एज अ कैप्टन इट्स नाउ इम्पोर्टेंट कि मैं भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दूं, क्योंकि उसने भी कुछ खास अभी तक किया नहीं. Right. Right. Uh, he's a very cool-headed guy. His captaincy is supposed to bring a lot of calmness. हम्म. He does not get flustered on the field, but I think after a point, if your middle order is so rattling, और वो लोगों ने 5-6 का कॉम्बिनेशन लेके गए थे, 6-5 का कॉम्बिनेशन लेके गए थे कि 6 बैट्समैन 5 बॉलर.
which is a little odd to see at times. So I think they would want players who could contribute to the bat also. Virelage can contribute with the bat. Uh, they might get a few more players who and test their bench strength out. Probably use Pathirana a little more earlier in the innings as compared to just using him in the middle and the death overs. That's one thing that can happen. Um, Vanindu Hasaranga seems a little off color, so but they can't drop him because he's one of the most successful spinners that Sri Lanka have. T. Kishana again, Surya Kumar Yadav and company. In fact, even Yashasvi Jaiswal, they kept sweeping them. It was a plan that was always in Surya Kumar Yadav's mind, and they just kept sweeping him, which obviously shows that you were not ready to how to bowl to Sky, or you got the wrong bowlers in front of the wrong batsmen. So yeah, it is Sri Lanka is still in the learning phase, I think. But the top order has always been in form. ये जो ये Patum Nissanka है, he's at a very good Lanka Premier League also. So let's see, let's see. बट स्काई की तूने बात करी, दे केप्ट स्वीपिंग. आई थिंक स्काई का अगर तू देखे लास्ट मैच, सिर्फ डीप स्क्वायर लेग से फाइन लेग इतने में ही मार रहा था वो. बार बार इतने में मार रहा था, एंड श्रीलंकन बॉलर्स वाज जस्ट नॉट लर्निंग. And of course, the other thing that you talked about was Gambhir now changing batting orders and of course getting in batters here and there. मतलब वो चीज हो रही है अभी. So somehow I think he also is taking into consideration the fact कि इस टीम को मैंने अगले 2 साल के लिए प्रिपेयर करना है for a T20 World Cup. And maybe now this is the phase when we'll actually see quite a lot of surprising calls also, कि कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई भी बॉल डाल रहा है, कोई भी बैटिंग कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एट एनी नंबर. Given what Gambhir feels is going to be the right thing for a particular player to be set up in let's say a particular role, तो वो चीजें भी हो सकती हैं. और उस चीज का ऑलरेडी हमें धीरे धीरे एविडेंस मिल रहा है. And of course, at this point in time, unfortunately, Sri Lanka doesn't look like a match or a good match for the Indian cricket team. And obviously, जब ODI का लेग शुरू होगा तब भी थोड़ी बहुत दिक्कत, थोड़ी क्या मतलब काफी दिक्कत हो सकती है, because our stalwarts are returning. They are, I mean, Rohit Sharma is returning, and of course Virat Kohli is returning. So, and not just because of that, but I think India somehow have a way of playing ODI cricket, which I think Sri Lanka को थोड़ा सा difficulty हो सकती है, क्योंकि considering the format T20, आप still एक मौका ले सकते हो, आप still एक एक फाइट दे सकते हो, बट ओडीआई में ऐसा नहीं चलता. ओडीआई में इट इज यूजुअली द बेटर टीम, एंड द बेटर टीम व्हिच इज accustomed with a lot of resources and of course skill, that sort of comes up on top. But yes, of course, India Sri Lanka हो गया. There is another series that was on, But which was तूने एक चीज yeah. देखा इसमें, हाँ तूने एक बता. चीज देखा बैटिंग ऑर्डर में उसने सबको एक एक सिचुएशन में भेजा है in which probably they've never been in. So I think that what he's trying to do is that a batsman will not always, except for the opener and the top three, a batsman will not have a fixed batting order. You should know how to bat at number 4, number 6, number 7, number 8. But with Gambhir, You, you never even know your opening slot might be in trouble. क्योंकि हाँ मतलब हो सकता है पता तो नहीं है, वो अक्षर उठा के पटेल को अक्षर भेज पटेल देगा, को ओपनिंग करा देगा भाई. वो अक्षर वो पटेल को अक्षर भेज पटेल देगा, वो भेज सकता है, वो बिल्कुल भेज सकता है. And that is 100% possible. He is also now trying to tell his batsmen that you have to contribute with the ball. He's done that before in the IPL also, where he's preferred bowlers who preferred batsmen who can bowl and bowlers who can bat. And that is one of the primary reasons of getting Harshit Rana. And I hope he gets a game in this T20 because I want to really see him bat. तो देखना वो रैंडम नहीं कर रहा है चीजें कि इसको इधर भेज दिया. He sent, okay, now Hardik Pandya probably is not going to be a part of the ODI. You want to see if Hardik Pandya, how does he bat in this situation? उसको भेज दिया. Maybe He's not, putting मतलब वो आ people भी in, सकता है, ऐसी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं. नहीं, he's वो शायद putting आ people भी into सकता है. हार्दिक पांड्या को अभी रेस्ट uncomfortable दिया. मैच पोजीशंस. वो uncomfortable मैच पोजीशंस में डाल रहा है सब. हम्म. कि भाई रियान पराग को डेथ में डाल दो. रियान पराग has batted for number 6 for his IPL team and has failed. Then he came at number 4. And that does not mean that he's going to drop Riyan Parag because he sent him at number 6 and saying, "Yeah, you did not perform." Like that. So these things are very, very good to see. That means that whenever there is an injury, it is not like, अरे ये injured हो गया, आपको हमारे पास कोई है ही नहीं. सामने वाला खड़ा रह जाएगा कि हाँ मैं इधर बैटिंग कर रहा हूँ, पोजीशन में मेरे को आता है. Sending Rishabh Pant at number 4 is a beautiful idea.
I think Rishabh Pant bats at number 4 for Delhi also, if I'm not mistaken. Yeah. Hmm. So that's But it's excellent. Rishabh Pant has ideology. It's an performed well. ideology. But जैसे तू बोल रहा है, I think it's an ideology that you should be comfortable in being uncomfortable. Yeah. That's how it is. Or I think with Gambhir, you can expect that Because it is because about winning. he can always make you his presence. Sometimes Yeah. I feel कि मतलब अगर वो मेरा कोच होता, अगर मैं उस ड्रेसिंग रूम में होता, तो at Uh, times he can give you that vibe of being uncomfortable, right? yeah. 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 But Yeah. Yeah. that's how it is. Because it's about winning. Well, To win. moving on now. Moving on. Yeah. Yeah. Yes, we are there to win. He's there to win. Of course, a winning dressing And room is a happy oh, dressing room, and a happy dressing room. Of course, there's something else that just winded up, which was not supposed to wind up so early, unfortunately. But that's how we saw after the first two Test matches, which was England and West Indies. Or Ben Stokes ne bol diya, please do not underestimate us. I don't know why that statement came up, but somehow, even if they win most of their games, they still might not be able to qualify for the World Test Championship final. So. क्या हो रहा है ये वो तो इंग्लैंड में देख ही नहीं रहे ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो उनको तो बस एशेज, उनको वो एशेज का अर्न चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को उनको हराना है। ये उनका मेन गोल है। और ये मेन गोल इसलिए भी है क्योंकि बहुत पब्लिक इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से उनको फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, उनको फर्क पड़ता है एशेज से। हम्म, Because हम्म, Ashes is one of the most oldest running rivalries. It's got a lot of history. And क्या होता है ना यार, आप बचपन में आपके पापा ने आपको एशेज दिखाया, फिर आप बड़े हुए, फिर आपको एशेज दिखाया, फिर आप बड़े हम्म, हुए। Like imagine if India and Pakistan had a series going a few hundred years ago, you would obviously give it more importance हम्म, than any particular championship. Correct? It's just like हम्म, that. If their goal is the Ashes, uh, my only problem with them is their top four batsmen, which I feel England इंग्लैंड बोलता है कि हमने कॉन्कर कर लिया है, बट तेरे को पता है जो रूट का एक भी सेंचुरी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। जो रूट डज नॉट हैव अ सिंगल सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। बेन डकेट डज हम्म, नॉट हैव अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। जैक क्रॉली averages minimal in Australia. Oli Pope हम्म, does not have an average in Australia. So yeah, you might have the top four, but you have to still figure out on how they will perform in Australia. Do they have the bowlers? Yes. With Mark Wood, if he remains fit and continues to bowl spells that he bowled, they call it the spell from hell. जो लास्ट वाला स्पेल था उसको स्पेल फ्रॉम हेल बोलते हैं, बिकॉज जो 5 विकेट गिरी है रिवर्स स्विंग के बेसिस पे, दैट वाज आउटरेजियस। मतलब no one could believe that the ball could do so much. And हम्म, yeah, so I think Shoaib Bashir is an excellent off spinner. If they are willing to put him into different situations and they continue, which Ben Stokes will, then probably that could counter Nathan Lyon in Australia versus Shoaib Bashir in Australia. So yeah, I'm looking at England from the Australian perspective now. उनको बहुत क्लियरली हम्म, ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतना है, उन्हें और कोई फर्क नहीं पड़ता जो सीरीज हम्म। हो। बट एक चीज बहुत अच्छी बोली बेन स्टोक्स ने, एंड हम आई थिंक इसके बारे में बहुत ज्यादा बात भी कर चुके हैं, अबाउट द बेसबॉल इफेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट, कि मतलब किस तरीके से उनको ही इज समवॉट डिफाइंड पीपल नाउ दैट आफ्टर द इंडिया सीरीज, एंड थैंकफुली मतलब जैसे लोग हारते हैं तो ऑफ कोर्स यू गो एंड देन यू इंट्रोस्पेक्ट कि भाई क्या गलत हुआ हमसे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दे रियली वांटेड टू डू वेल इन द इंडिया सीरीज एज वेल। और इसका एक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें बोला भी, सॉरी, जो पोस्ट मैच इनकी प्रेजेंटेशन होती है उसमें बोला भी कि वी वांटेड पीपल टू बी नाउ स्मार्ट विद देयर ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि मतलब वहां पे जाके कि बस अटैकिंग क्रिकेट खेलो और एंटरटेन करने के लिए, बट ऑफ कोर्स वेन एवर वी स्टेप ऑन टू द फील्ड एंड वी वेयर दिस इंग्लैंड शर्ट वी वांट टू विन। उसने ये चीज बोली और उसने कहा कि यार हमें चाहिए था कि लोग स्मार्ट हों विद देयर ऑप्शंस, and of course try and put pressure on the opposition at the same time, but by being smart. ठीक है? And somewhere down the line, I think things changed for them from the fourth test onwards that they played here in India. जब जो रूट ने वो सेंचुरी मारी, when they understood कि हाँ आपको क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पे आपको कंडीशंस, आपको पिच, आपको वेदर, इन सब का जो है रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कांट एक्सेल एज अ बैट्समैन। आप जस्ट वहां जाके मतलब सिर्फ बल्ला घुमा के अपना मतलब स्कोर नहीं कर सकते, एंड जस्ट टू इन ऑर्डर टू एंटरटेन द क्राउड, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आप जाके मतलब कोई भी शॉट खेलो और फिर उसके बाद आउट हो जाओ और फिर
पीछे फंसो मतलब इस चीज के, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोलो कि नहीं हमारी वजह से दूसरे लोग ऐसे खेल रहे हैं. So I think this Indian tour that they had in the month of February and March, I think they taught them a lot, and hence जो अभी जो पहले लोग कह रहे थे ना बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल, वो अब ज्यादा लोग नहीं कह रहे हैं. नाउ दे आर सेइंग दैट नाउ इंग्लैंड के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे स्किल हैं कि हाँ वो स्मार्ट क्रिकेट खेल के अच्छे से खेल सकते हैं, एंड दे कैन विन, एंड दे डोमिनेटेड दिस टेस्ट सीरीज. एंड ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज अगेन वाज नो मैच फॉर देम, एंड वेस्ट इंडीज विल आल्सो हैव टू लर्न बिफोर दे प्ले a होम टेस्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. बट इंग्लैंड ने दिखाया है कि मतलब वो कितने डोमिनेंट हैं, क्योंकि उनके पास वो स्किल है, उनके पास वो रिसोर्सेज है. एंड ऑफ कोर्स एज यू राइटली मेंशन्ड दे आर थिंकिंग अबाउट द एशेज. शोएब बशीर उसको लिया ही हाइट की वजह से, बाउंस की वजह से. स्पिन एंड बाउंस इज गोइंग टू बी अ डेडली कॉम्बिनेशन इन ऑस्ट्रेलिया. So hopefully that. But there were two other nations which played a test series, a one-off test. Dhwanil, and I'm really really proud that it was not a one-sided affair, at least. Of course, there were two teams that were pitted together, pitted against each other. Sorry, and Ireland versus Zimbabwe. Uh, a good test match. क्या कहता है धन? गुड टेस्ट मैच, ग्रेट टेस्ट मैच. मैं बता तो रहा हूँ, अगर वो मैच का कैमरा एंगल नॉर्मल मैच जैसा होता तो वो पूरा हाँ. मैच देखता है यार. हम्म. बट वो कैमरा एंगल थोड़ा सा ऐसा था कि यार नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस विकेट मतलब विकेट गिरती है तो सब ऐसे ताली वाली मारते तो वो समझ में आ रहा था. बट जब मैं रात को सोया तो स्कोर था आयरलैंड का 21-5. ठीक है, मैंने कहा यार जिम्बाब्वे मैच जीत जाएगा ये वो. जब मैं सुबह उठा तो आया आयरलैंड 1 by 4 विकेट्स. ये कैसे हो गया? फिर जब मैंने स्कोर चेक किया तो पता चला कि भाई ये लोग तो 50-50 रन बनाया है. एंडी मैकब्रीन एंड लोक टकर तो मुझे पता है, बट एंडी मैकब्रीन ने और इसने 50-50 रन बना के मैच जिता दिया. वाओ. बट it's so good to see these nations play test matches, matches especially. मतलब वो साल में कितना टेस्ट मैच खेलते हैं यार जिम्बाब्वे वाले? 9-10 मैक्सिमम, फुल मेंबर होके, या 11 फुल मेंबर होने के बाद फुल ये मेंबर लोग. होके. And I'm particularly very happy with Ireland getting test status and then now playing test matches because, okay, I'll tell you something about Ireland. Okay, 1792 में सबसे पहला मैच हुआ था मिलिट्री ऑफ आयरलैंड वर्सेस जेंटलमैन ऑफ आयरलैंड. ठीक है. उसके बाद गेम थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू होने लगा, ग्रो करना. 1902 में गेलिक एथलेटिक एसोसिएशन ने बोल दिया कि ये सब इंग्लिश स्पोर्ट्स है, फुटबॉल वुटबॉल ये सब नहीं खेलोगे, तुम सिर्फ गेलिक स्पोर्ट्स खेलोगे. तो गेलिक फुटबॉल होता है, वो अलग अलग स्पोर्ट खेलने होते हैं. ठीक है. 1922 में ब्रिटिश आयरलैंड छोड़ के चले जाते हैं, बट नॉर्थ में वो लोग का थोड़ा होल्ड रहता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत क्रिकेट चलता है. आफ्टर 71 years दे फाइनली से कि चलो बैन हटा दो, आप लोग क्रिकेट विकेट खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. पर उसके 2 साल पहले 1969 में वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में खेल रहा था और वही टीम आयरलैंड के लिए एक प्रैक्टिस मैच के लिए आई थी. हम्म. आयरलैंड की टीम ने वेस्ट इंडीज की टीम को उस टाइम पे 25 रन पे ऑल आउट कर दिया. उसमें क्लाइव लॉयड भी था. In 25 runs, they bowled them out because they were used to playing at Lords, which is a hard wicket. But when they played in Ireland, because it rained so much, that it was a soft wicket. तो हर बॉल को मारने की कोशिश कर रहे थे और आउट हो रहे थे. उन्होंने 25 रन में उनको आउट कर दिया. That was the first glimpse of Ireland cricket showing in. 1993 में जाके उनको एसोसिएट नेशन का टैग मिला है 93 में. ठीक है. उसके बाद फिर 2007 में उन्होंने पाकिस्तान को हराया. उसके बाद जाके फिर 2011 में इंग्लैंड को हराया, जहाँ पे वो सेंचुरी बनाई थी, आउट ऑफ इम्पॉसिबल आयरलैंड मेड इट. ठीक है. There are two reasons why Ireland does not play so much cricket. It's because it always rains there. Out of a 5-day match, if it does not rain for all 5 days, there is something wrong with the weather there. ठीक है. The second is that there was a decreasing presence of the UK because of the conflict that goes on of whether you should be a part of the UK or only Northern Ireland be a part of UK. The other country is separate. Because of that constant political tension there, इतना ज्यादा क्रिकेट आयरलैंड में वो खेल नहीं पाते थे, एंड हेंस ऑफ कोर्स रिसोर्सेज की कमी थी. ठीक है. बट आईसीसी ने क्या किया कि गेम एक्सपैंड करने के लिए 2004 में एक कप लॉन्च किया था, इंटरकॉन्टिनेंटल कप. ठीक है. इंटरकॉन्टिनेंटल कप मतलब 4 दिन का मैच होगा. ठीक है. अलग सारी एसोसिएट टीम्स होगी, फिर राउंड रॉबिन होगा, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल, और जो जीत गया वो जीत गया इंटरकॉन्टिनेंटल कप. ठीक है. आयरलैंड 7 बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप हुआ है और आयरलैंड 4 बार उसमें से जीत चुका है. एज अर्ली एज 2009 देयर सीईओ वॉरेन ड्यूट्रॉन ने बोला था कि हमें
टेस्ट मैच क्रिकेट खेलना है, क्योंकि ये जो बच्चे 2007 में जीत के आए हैं, ये बचपन से ही किसी और को टेस्ट मैच खेलते हुए देख रहे हैं, और उनको 5 डे खेलना है, पर हम नहीं खेल पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंग्लैंड चले जाते हैं। एड जॉयस, ओवेन मॉर्गन, मतलब वो सब चले गए, उनको रोकने के लिए हम टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। एंड वी वांट टू बी अ फुल मेंबर इन आईसीसी, ताकि हम लोग भी उनके फ्यूचर टूर्स का पार्ट बन जाए, एक कंटिन्यूस रेवेन्यू शेयर आए, थोड़ी बहुत हेल्प आए। और एंड एंड ओके, टू बिकम अ टेस्ट स्टेटस, ओके, अगर आपको टेस्ट स्टेटस चाहिए ना एज अ कंट्री, तो पहले क्या होता था कि जो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस होती थी, वो डिसाइड करती थी कौन खेलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, फिर 1909 में साउथ अफ्रीका ने सजेस्ट किया कि हम तीन खेलते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। फिर वेस्ट इंडीज को ले आया, फिर न्यूजीलैंड, फिर इंडिया। 1932 में इंडिया, 1952 में पाकिस्तान, 1981 में श्रीलंका, 1992 में जिम्बाब्वे। तो द अमाउंट ऑफ गैप, 2000 was Bangladesh, and after 17 years it was Ireland and Afghanistan who got the test status. ना पहले टेस्ट स्टेटस होता था कि एक कमेटी बैठती थी, वो बोलती थी हाँ वोट करो, हाँ ठीक है ठीक है, लोग खेल सकते हैं हमारे साथ, इनकी एबिलिटी है इतनी, हम डिसाइड करेंगे तो बना दो। अब थोड़ा सा चेंज किया कि अब वो इंटरकॉन्टिनेंटल कप रखते हैं, उसमें से जो आदमी जीत जाएगा वो लोएस्ट रैंकिंग टीम के साथ खेलेगा, और फुल मेंबर टीम में से जो लोएस्ट रैंकिंग उसके साथ खेलेगा, उसको हराया तो उसको रिप्लेस कर देगा, या फिर उसकी जगह ऐड हो जाएगा। तो नाउ इट्स बिकम फेयर एंड स्क्वायर। इन 2015 Ireland received $3 million to play cricket, which is one third of what Zimbabwe gets. Okay. Now, because there is so much less money, Ireland सर कि हमें तो टेस्ट क्रिकेट खेलना है, हम T20 पे खर्चा नहीं करेंगे, उन्होंने T20 पे खर्चा करना बंद कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि उस टाइम पे T20 बूम में चला गया, and it was very difficult for Ireland to put people and watch test matches because every other associate nation was like, हम लोग को T20 खेलना है भाई, इसी में पैसा है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाए, ये करे वो करे, इतना टाइम नहीं, ग्रास रूट लेवल पे जाने का टाइम नहीं, T20 खेलेंगे, जितना है उतना है, ठीक है। इन 2018 when they hosted Pakistan for a test match, they spent 1 million euros, which is 9 crore rupees in today's date, one test match, कोई ग्राउंड नहीं था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बांधना पड़ता है, तो सब थर्ड पार्टी वेंडर को पैसा देना पड़ता है कि ये बनाओ वो बनाओ ये बनाओ। अब जाके फाइनली कुछ साल में उनके पास अपना एक ग्राउंड आने वाला है जो बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। नाउ यू वांट टू बिकम अ टेस्ट स्टेटस, यू हैव टू हैव अ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। तो आयरलैंड के पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 टीम खेलता है बस, ठीक है। उनके पास अब ऐसा हो गया है कि एक इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट है जो 2013 से चल रहा है वहां पे, जो 3 टीम खेलता है, तो अब उनके पास एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, एक पूल ऑफ प्लेयर अराउंड 40-50 thousand लोग है, तो नाउ दे हैव एवरीथिंग इन प्लेस। नाउ व्हाट दे डोंट हैव इन प्लेस इज मनी, because after the test status their one day and white ball cricket started dropping, their performance started dropping. They were regulars at World Cups, they missed out on that. In T20 they were playing well, they missed out on that. Now they've admitted कि यार अब हमें थोड़ा T20 पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि the money is coming from there. So from 2018 to 2024 they have played only 9 matches, ठीक है, only 9 matches. उनको प्रॉमिस किया था आईसीसी ने कि 2015 से 2023 के बीच में आपको $60 million देंगे, हम सिर्फ $37 million दिए। After being a full member, their revenue percentage share is only 2%. Remember, India is 38.5%. BCCI gets 38.5, they get 2%. ठीक है? And in the new cycle, जो अभी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम का साइकिल है, उसमें उनको 12 टेस्ट मैच दिए, जिम्बाब्वे को 20 दिए और अफगानिस्तान को 21 दिए। And the revenue share is probably higher than 2, but less than 5. So just having a test status does not mean that you will get more test matches or you will get more exposure. However, the smart move is that there is steady stream of revenue that will come. But सिर्फ 12 पूरे इतने टाइम में सिर्फ 12 टेस्ट मैच 4 साल में, that will not do anything to Ireland, nor will it give them money. So this is one test match that they'll play against Zimbabwe. Now God knows when they will play. उनकी सीरीज एक मैच की होती है आयरलैंड की, वो एक मैच की सीरीज खेलते हैं, मैक्सिमम 2। अभी लास्ट ईयर अफगानिस्तान, इसी साल अफगानिस्तान का हरा के उनकी मेडन टेस्ट विक्ट्री हुई है, बाकी जितने भी 7 मैच 8 मैच हुए वो हार चुके हैं सारे। So that will be a big challenge for Ireland. How do they inspire the young generation to come and play test matches when you see your team losing? हाँ, 2007 में हम इंस्पायर हो गए थे कि आपने पाकिस्तान को हरा दिया, तो सब लोग हाँ क्रिकेट खेलते हैं। अब आप क्या करोगे? आपके यहाँ वेदर कंडीशंस नहीं है, आप टूर नहीं कर सकते, आपने टेस्ट स्टेटस तो ले लिया, अब
So that is why these test matches are very important, because यार उनके लिए साल में 2-3 बार ही खेलने मिलता है उनको, और अगर ऐसा खेलने मिले तो why not. तो मनी की बात करी, पैसे की बात करी, सो ऑब्वियसली आयरलैंड में ना अभी आईसीसी ने रिसेंटली इस साल उनकी फंडिंग बढ़ाई, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट आल्सो, एंड वी स्पोकन अबाउट दिस इन प्रीवियस पॉडकास्ट एज वेल, कि वहां पे आपकी पे को लेकर जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बोर्ड्स के प्लेयर्स के, उनके पे को लेकर काफी डिबेट चल रहा था कि नहीं यार आप हमें ज्यादा पे दो एक्सेट्रा. आयरलैंड इनफैक्ट इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू हैव एन इक्वल पे फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट. सो हाँ, लोगों कॉन्ट्रैक्ट ने शुरू किए ना इनफैक्ट, उन्होंने. एग्जैक्टली, तो लोगों ने उनसे भी सीखा, एंड देन इंग्लैंड केम इनटू पिक्चर, एंड ऑफ कोर्स नाउ बीसीसीआई इज आल्सो गेटिंग इनटू इट. सो ऑल ऑफ दिस, ऑफ कोर्स आयरलैंड ने काफी स्टेप्स लिए हैं, एंड द अदर रीजन अनफॉर्चुनेटली इज ऑफ कोर्स एज यू मेंशनड इज लैक ऑफ फंडिंग, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग व्हाट दे आर नॉट एबल टू डू is of course host events. Now they couldn't host Australia for a red ball event. So forget, sorry, for a white ball series. So forget about a test match, etc., etc. But test match, of course. एक और चीज आईसीसी बहुत हेल्प कर रहा है उनको, which is to sort of now publish all of this and broadcast all of this on YouTube. सो अगर आप देखो कि आईसीसी टीवी करके एक है, और ऑफ कोर्स यूट्यूब पे भी काफी सारे ये लोग अब दिखाना शुरू कर रहे हैं, स्पेशली जो लीग टूज हैं आपके, और जो वुमेन क्रिकेट है, वो सारी की सारी अब यूट्यूब पे भी जा रही है, सो दैट पीपल हैव इजी एक्सेस. सो दैट इज समथिंग दैट आईसीसी इज आल्सो डूइंग इन ऑर्डर टू स्प्रेड द गेम, एंड दे आल्सो अंडरस्टैंड दैट हाउ important associate nations is. But Zimbabwe, of course, we'll have to spare a thought for them as well, क्योंकि जिम्बाब्वे मेरे को ऐसा लगता है कि यार उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स विद द काइंड ऑफ इंटरवेंशंस देयर बोर्ड हैज हैड, एंड इनफैक्ट उनको भी सस्पेंड किया गया है काफी टाइम. बट एक चीज बहुत अच्छी हुई इन द रीसेंट डेवलपमेंट्स इज दैट ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने, रिचर्ड गोल्ड ने, अभी बोला है कि जिम्बाब्वे व्हेन दे टूर इंग्लैंड नाउ, दे आर आल्सो गोइंग टू गेट अ टूरिंग फीस. They've started something else now. So yeah, I mean, hopefully, they get to see, we get to see more of test matches coming in, and of course, grow. Let these associate nations also grow. हर 2 साल तो हमें देखेंगे ही in the form of World T20, क्योंकि अब 20 की 24 होने वाली है टीमें. But of course, to get to see them to sort of play test matches, of course, is of course uh, going to be प्रॉब्लम है pretty. ना यार उसमें भी. Hmm. वो टेस्ट मैच यूट्यूब पे आप दिखा दोगे, लेकिन एज बीइंग अ बीसीसीआई फैन और बीइंग एन इंडियन क्रिकेट फैन, आपको टेस्ट मैच देखना है, उसमें तो वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, स्टंप माइक, हॉकआई, डीआरएस, ये वो, थर्ड अंपायर, फील्ड प्लेसमेंट, इतना कुछ अब इन्वॉल्व हो गया है हमारा. अरे विंड स्पीड आता है कि आप यूट्यूब पे दिखाओगे where all of us are going to be like, yeah, it's a great match. It's like us, yeah, great podcast, but bad video quality. So no, you're not going to watch it. So it's like that. It's like that. We're still an associate nation, so we will need a little bit of funding from the ICC. But हाँ, and इस बार वो ट्रायंगुलर सीरीज भी वापस शुरू हो रही, पता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड. तो पहले होता था ना, तो 3 लोग एक साथ खेलते थे. हाँ, वो भी इस बार फ्यूचर टूर प्रोग्राम में चालू होने वाला है. India has got less test matches as compared to England, but India has got more T20s as compared to England. So England plays the highest number of matches at 150, then Australia, and then only one match less is India. We are playing a match less than both the giants of the game, but the lion's share is ours. And very simple, it is. If anyone is feeling, if anyone is feeling, अरे BCCI इतना क्यों ले रहा है? Please understand, BCCI उतना कमा के देता भी है ICC. Right now, if 90% of the revenue that ICC has. 90, 60, 70%. 70%. नहीं 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 नहीं, 90% of the broadcasting revenue I'm talking of. Broadcasting revenue. 90% of Okay. the In specific broadcasting broadcasting revenue revenue, 90%. that ICC gets comes from BCCI, guys. So please, for those people who keep on saying कि नहीं BCCI कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, BCCI खा गया है, भाई हम कमा के भी तो दे रहे हैं. It is as simple as that. Because 90%, in fact, of India's sports market is cricket, and now we have kabaddi also coming in slowly and steadily. उस रेस में फुटबॉल अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं आ पा रहा है, बट कबड्डी with प्रो कबड्डी लीग etc etc वो धीरे धीरे आ रहा है. But 90% of the Indian sports market is cricket, and hence BCCI has the power. Talking about money, talk
Talking about money, of course, we've had something called as the MLC, जो कि अभी अभी खत्म हुआ है recently. So MLC का second season खत्म हुआ and Washington Freedom won the second season. उसका captain Steve Smith था, coach Ricky Ponting, and of course it had the likes of Maxwell, it had the likes of Travis Head, Rachin Ravindra, all of them. And last year इन लोगों ने eliminator में finish किया था, but this time they won it. And Steve Smith has in fact थोड़ा रिवैम्प किया अपने आप को एज अ T20 बैटर. अच्छा खेला है इस बारी. इनफैक्ट थर्ड हाईएस्ट रन गेटर है, सेकंड हाईएस्ट इनफैक्ट कह सकते हैं, बिकॉज उसकी जो नंबर ऑफ रन्स है इज सिमिलर टू ट्रेविस हेड विच इज 336. बट ट्रेविस हेड scored it at a strike rate of 173 and hence he was the most valuable player of the tournament. And उसके अलावा स्टीव स्मिथ ने जो स्ट्राइक रेट की है वो 148 की है, which is decent considering the kind of conditions that you have in US. And Faf du Plessis turned out to be the highest run scorer for Texas Super Kings. इसने 172 की strike rate पे बनाया है 420 runs. And Saurabh Netrwalkar did Netrwalkar things, 15 wickets, highest wicket taker, and an economy at of 7.67 in the 7 games that he played. And Rachin Ravindra was not a close second, but yeah, was second on the list with 12 wickets to his name. And two talents which have really come out. One is Hassan Khan, is their domestic talent, and of course, one is Sanjay Krishnamurthy. And Hassan Khan, of course, इससे पहले भी मतलब ये अभी इस time he's been given as the domestic player of the season. But Sanjay Krishnamurthy is a 21-year-old science graduate, computer science student, जो अभी ये टूर्नामेंट खेल रहा है. पिछले साल भी वो इसी टीम के लिए खेला था, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के लिए. और इस बारी he's been pretty aggressive. He might not have scored as many runs, कुछ 260 के आसपास ही runs बनाए हैं unfortunately, but there was this one innings that I'd like to tell you about, जो उसने वॉशिंगटन फ्रीडम के अगेंस्ट ही खेली है इन द लीग स्टेजेस, जहाँ पे वॉशिंगटन फ्रीडम वन द sorry, they played first and they scored some 174 in 15.3 overs. It was a rain affected game with a different target, 120 they had to chase, and they chased it down in 7.4 overs. And this guy scored some 72, sorry, 79 of 42 balls. ठीक है, and he can hit big sixes. ठीक है, he took his chances. और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद आके बोलता है at the age of 21 that he understands that his mental approach is very very important. एंड इसलिए वो अपने मेंटल कोच के साथ बहुत ज्यादा काम कर रहा है. उसके लिंक्डइन पे जाके देखोगे तो उसने लिखा हुआ है कि नॉर्दर्न कैलिफोर्नियन क्रिकेट एसोसिएशन के लिए मैं जो है खेलता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा. आई एम अ साइंस ग्रेजुएट. ही इज गोइंग टू ग्रेजुएट इन 2025. एंड अपने ओडीआई सेटअप में भी उसको चांस मिल सकता है, बिकॉज यूएसए इज नाउ गोइंग टू प्ले एन ओडीआई against Canada, against Netherlands now starting August. But all this is okay. All this is happy news. All this is absolutely fine. But, and there is a big but when it comes to USA cricket. Okay, so अप्रैल में या जो यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमिटी है विच इज यूएसओपीसी, ठीक है, उसने एक हार्ड लेटर भेजा भाई यूएसए क्रिकेट को कि क्या कर रहे हो तुम लोग, वी आर नॉट हैप्पी विथ यू. ठीक है, तुम्हें कराना नहीं कराना, मतलब तुम चाहते हो कि नहीं चाहते कि एलए ओलंपिक्स हो या ना हो और तुम उसका पार्ट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उसको लगा कि यूएसए के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो उनके डे टू डे ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि ठीक नहीं है. ठीक है, और वर्ल्ड कप से जस्ट पहले 6 months into the contract, in fact less than 6 months into the contract, उसका जो सीईओ था डॉक्टर नूर मुराद, ठीक है, उसको निकाल दिया गया बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और एंड इनफैक्ट वो बहुत अच्छा काम कर रहा था. आई टॉक अबाउट दैट. तो आईसीसी ने ना वार्निंग भेजी मार्च में कि भाई ये क्या हो रहा है, तुमने अपने सीईओ को निकाल दिया, तुम्हारा तुम्हारा भाई वर्ल्ड कप आने वाला है, क्या करने के वाले हो तुम लोग. तो उनको सस्पेंड करने की भी बात हुई थी. एंड मोस्ट ऑफ द फुल मेंबर बोर्ड्स इनफैक्ट वर ओके टू सस्पेंड यूएसए. बट फिर उसके बाद सबने बोला कि चलो ठीक है, आईसीसी ने कहा कि रुक जाओ, वर्ल्ड कप होने वाला है, मस्त हो जाओ. फिर नहीं तो इट विल बी अ वेरी बैड एडवर्टाइजमेंट फॉर द वर्ल्ड कप और नहीं करा पाएंगे हम. और एक सोर्स ने उनको ये भी कहा है कि यार जो बोर्ड है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो कभी कभी उन दोनों के बीच का उन दोनों के रोल्स का ना डिफरेंस नहीं समझ पा रही है. ठीक है, एंड डॉक्टर मुराद वाज अ वेरी गुड गाय अपेरेंटली,
ठीक है, उस व्हेन ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, तो मतलब वो एक्चुअली एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अपॉइंट करना चाहता था, ठीक है, वो फाइनेंस का भी एक बंदा अपॉइंट करना चाहता था, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, और वो एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी क्रिएट करना चाहता था फॉर द नेशनल टीम, ताकि उनकी भी ग्रोथ हो पाए धीरे धीरे, और अंपायर्स और कोचिंग वगैरह के लिए भी, मतलब ही वांटेड टू एक्चुअली गेट इन अ हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ताकि वहां पे भी इंप्रूवमेंट हो, अंपायर्स में भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, कोचिंग सेंटर्स अच्छे अच्छे बने, कोचेस अच्छे अच्छे आए, टीम डेवलप हो। बट ऑल ऑफ दिस अनफॉर्चुनेटली वेंट डाउन द ड्रेन, क्योंकि उसको रिजाइन करना पड़ा, ठीक है। एंड यूएसए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इनफैक्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स नाउ, एंड उसमें वर्ल्ड कप भी कराया इन लोगों ने, एमएलसी भी कराया, दे डिड नॉट हैव अ सीईओ, कैन यू बिलीव इट? ठीक है, दे डिड नॉट हैव अ सीईओ। सो यूएसए क्रिकेट के ना 3 बोर्ड मेंबर्स थे, ठीक है, विच इज कुलजीत सिंह, अर्जुन गोना एंड पेट्रिशिया वाइटेकर, ठीक है। इन लोगों ने ना बहुत बड़ा एक ईमेल लिखा आईसीसी को, ये कहे कि हमारे बीच में ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बिकॉज कि हम माइनॉरिटी बोर्ड ओनर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अनएथिकल टर्मिनेशन हुई है डॉक्टर मुराद की, और हमारी सुनी नहीं जा रही है, देर आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स ऑफ की पोजिशंस, illegitimate constitution revision and systematic corruption at electoral gains. Now व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन, उनको चेंज करने पड़े काफी सारी चीजें, क्योंकि यूएसओपीसी से मतलब उनके जो जितने भी फंडामेंटल्स थे उनके साथ अलाइन भी करना है, एंड दे टुक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। और अभी भी कई सारी चीजें उन्होंने बस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करी है, पर उसको अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, उसको इंप्लीमेंट करने में अभी एक डेढ़ साल लगेगा उनको, ठीक है। एंड दे मेंशन की लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और लीगल कॉस्ट, सैबोटाज हो रही हैं सारी रेजोल्यूशंस, और जो आपके गवर्नेंस चार्जेस हैं, वो भी बहुत ज्यादा सैबोटाज हो रहे हैं, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, एंड बहुत सारे इलेक्शन इश्यूज हैं, ठीक है। सो यूएसए क्रिकेट का जो अभी चेयरमैन है, विच इज वेनु पिसी के, ठीक है, उसने अभी अभी बहुत एक ज्यादा अच्छा इंटरव्यू दिया है ऑन क्रिकबस। फॉर ऑल आवर व्यूअर्स, आई वुड लाइक देम टू गो एंड सी, कि अभी एजीएम जो हुआ था श्रीलंका में कोलंबो में, वहां पे भी इनको सस्पेंड करने की बात हुई थी, कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए, पर कई पीसीकी ने बोला है कि यार कई सारे कंप्लायंस इश्यूज तो थे फॉर श्योर, ठीक है, मार्च में हमें नोटिस तो आया था, और उसके बाद हमने कई सारी चीजें एड्रेस भी करी हैं, पर जो आईसीसी का भी जो ड्यू डिलिजेंस है वो कम है, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि हमारे पास फाइनेंस का बंदा नहीं है, हमारे पास अकाउंटेंट नहीं था बहुत टाइम, ठीक है, पर हमने उनको बताया कि हमारे पास पार्ट टाइम एक अकाउंटेंट था, ऐसा नहीं कि हमारे पास मतलब अकाउंटेंट ही नहीं था। और उसके बाद हमने दिसंबर में उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी कराया है, तुमने देखा कि भाई दिसंबर में हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो तुमने कहा कि भाई ये चलो हमारे पास अकाउंटेंट नहीं है, ये सब गलत बात है, ठीक है। और उसने कहा कि हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया, बट हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसलिए अपॉइंट नहीं किया क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर रहे थे, क्योंकि तुम ही लोगों ने कहा कि भाई यूएसओपीसी से साथ तुम्हारे जितने भी क्या कहते हैं वो है, उनके जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए। तो हम वही कर रहे थे काम, अब तुम हमें भी ब्लेम कर रहे हो कि मतलब यार ऐसे थोड़ी हो सकता है। सो बहुत सारे इनएक्यूरेट इश्यूज करके उसने बोला है कि वो हुए हैं, पर सबसे पहले तो आईसीसी ने ये बोला है कि भैया सीईओ ले आओ, कम से कम तुम सीईओ ले आओ, एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ले आओ, ठीक है। 12 महीने 12 महीने दिए हैं कि भाई अब एक स्ट्रक्चर ले आओ, एक फॉर्मल लेटर आने वाला है, अभी तक एक वर्बल जिसे कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन गया है कि तुमको हम 12 महीने दे रहे हैं, तुम्हारे ऑपरेशनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आने चाहिए, नहीं आएंगे तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, पर अभी तक इसका फॉर्मल लेटर नहीं गया है, ठीक है। So there's a lot happening in USA. Unfortunately, when we talk about money, when we talk about leagues, of course. But एक बहुत अच्छी चीज ये भी हो रही है कि उनका एक माइनर लीग क्रिकेट वो चालू होने वाला है। So that'll be very exciting to see. वहाँ से कई सारे डोमेस्टिक वो आने वाले हैं, and of course they are also planning to get into some policies की अब्रॉड में जो यूएस बॉर्न सेटल्ड हैं, क्योंकि वहां पे भी टैलेंट है, तो उनको कैसे खिलाया जाए। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी रिवर्स इंटरेस्टिंग ब्रेन ड्रेन, 12 months now. रिवर्स ब्रेन ड्रेन। रिवर्स ब्रेन ड्रेन। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या करने वाली है यूएसए क्रिकेट, क्या करने वाली है आईसीसी, और क्या करने वाली है यूएसओपीसी, और क्या होने वाला है एलए ओलंपिक्स में, ये तो भाई टाइम ही बताएगा, वक्त ही बताएगा। बट दिस इज समथिंग दैट आई थॉट इज a sour news right at the end of the podcast that I thought that people would like to see, and hence I have kept it right at the end of the podcast. Well, that's it. That's it. That's pretty much it today from our podcast, guys. It's again fun to bring you all these insights because it's something that we are very passionate about. We like reading about the game, what's happening in the world of cricket, and of course,
while we read, of course, we thought that bringing in these podcasts and of course discussing that in this format would actually help you guys to know a lot more than what is being discussed on television. So thank you guys. Thank you for supporting us so far. Those who've become members, we again thank you for supporting us. The amount doesn't matter. It's the intent. So thank you so much, guys, for having become members. And of course, for those who haven't, दिस इज द टाइम. आप जाए यूट्यूब पे और मेंबरशिप लें अनकैप्ड इंडियंस की एंड सपोर्ट करें हमें. क्योंकि फिर अगर ऑडियो खराब आएगा, वीडियो खराब आएगा, तो आप ही कंप्लेन आएगी. But kidding, guys, kidding. But of course, that is going to be our intention for sure. This episode was also one of those permutations and combinations that we've been trying to get you the best audio, the best video possible. We are definitely working on that front. But yes, we are on X, we are on YouTube, we are on Facebook, we are on Spotify and Amazon now. So, of course, go check out our content, guys. Thank you so much, guys. It was wonderful bringing you this podcast.